Question number 3, exercise 1.3. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, which are the following statements correct and why. 3, 4, subset of A, incorrect because 3, 4 is an element of set A. यहाँ पर 3, 4 जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए ये इनकरेक्ट है. सेकंड, सेट 3, 4 belongs to A, correct because 3, 4 is the element of set A. Subset 3, 4, set 3, 4 is subset of A, correct because ये जो है ये सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट है. 1 belongs to A, 1 belongs to A, correct क्योंकि 1 is an element of A. Similarly 1 is subset of A, incorrect because 1 is an element of A and 1 is not subset of A. Set 1 to 5 subset of A, correct. 1 to 5 subset of A, correct because every element of set 1 to 5 is an element of set A. Seventh, set 1 to 5 belongs to A, incorrect as 1 to 5 is the subset, not element. So set 1 to 5 does not belong to A. Question number 3, exercise 1.3, part 8th. Set 1 to 3 is subset of A, incorrect because 3 belongs to 1 to 3 and 3 does not belong to A. 5 belongs to A, incorrect as 5 does not belong to set A. 5 is subset of A, correct as empty set is a subset of every set. Set 5 is subset of A, incorrect because 5 belongs to set 5 and 5 does not belong to A. Question number 4, exercise 1.3, write down the subsets of following sets. Let A is equal to set A. So subsets of set A is equal to phi and A. Let V is equal to A, B. Subsets of set B is equal to phi, A, B, AB. Let C is equal to 1, 2, 3. Subsets of set C is equal to phi, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, 3. 2 रेज़ टू पावर अगर हम n करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 3, ये टोटल 8 होंगे. ऐसे ही यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि n यहाँ पर 2 है तो ये 4 होंगे. 1, 2, 3, 4. 2 रेज़ टू पावर n यहाँ पर 1 है तो 2 रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू 2, ये 2 आ गए. तो लेट D is equal to phi, ये अकेला है. The only subset of phi is phi itself. Question number 5, how many elements has power set of A if A is equal to phi? Solution, if A is equal to phi, then power set of A is equal to power set of phi, that is equal to phi. It means that power set of A has only one element. डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट. इफ़ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, देन देयर हैपन्स टू बी ए सेट विच इज़ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स. सच ए सेट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट and is denoted by U. For example,
द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक सेट ये है और एक सेट ये है, सेकंड सेट, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम बात करेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स। एन इंटरवल आई is a subset of R, the set of reals, such that if x and y belong to I and z is any real number between x and y, then z belong to I. इंटरवल I जो है ये रियल नंबर्स का एक सबसेट है, पोर्शन है। किस तरीके से है? सच दैट इफ एक्स वाई बिलोंग टू आई। अगर हमारे पास दो नंबर एक्स और वाई हैं और वो दोनों उस इंटरवल को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर एक नंबर और होगा एंड जेड इज एनी रियल नंबर। वहाँ एक नंबर जेड एक्स और वाई के बीच में होगा सच दैट z बिलोंग्स टू i, और वो x और y के बीच जो नंबर होगा z, वो उस इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो इसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ इंटरवल्स पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट, ओपन इंटरवल, द सेट x बिलोंग टू r such that a is less than x less than b is called open interval and is denoted by AB. On the number line it is shown as, here A and B both are excluded in the interval। जहाँ A और B जो दो पॉइंट हैं ये इस इंटरवल में नहीं गिने जाते हैं, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्लोज्ड इंटरवल, द सेट x बिलोंग टू r such that a is less than equal to x less than equal to b is called closed interval and is denoted by AB। on the number line it is shown as both a and b are included in the interval। Here in first case, open interval, the point A and B are not included, but in case of closed interval, A and B are included। Left closed, right open interval, the set x belong to R such that A is less than equal to x less than B is called left closed right open interval। It is denoted by क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड यहाँ पर ये ओपन है, तो इसे हम सेमी क्लोज भी कहते हैं। ऑन द नंबर लाइन इट इज शोन एज ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड। राइट क्लोज्ड लेफ्ट ओपन इंटरवल, the set x belong to R such that a is less than x less than equal to b is an interval closed on the right and open on the left side। It is denoted by AB। on the number line it is as shown। यहाँ पर a जो है वो एक्सक्लूड किया गया है और b जो है ये इंक्लूड किया गया है। Question number 6, write the following as intervals। अभी हमने जो इंटरवल्स की टाइप्स पढ़ी उनको इन प्रॉब्लम्स में हमने यूज करना है। तो x such that x belong to R -4 less than x less than equal to 6।
अब देखिए यहाँ पर -4 है और यहाँ पर <6 है। इसका मतलब ये जो है लेफ्ट ओपन है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है तो ये लेफ्ट ओपन आ गया -4 और लेस देन इक्वल टू 6 तो राइट क्लोज है, तो इसका हो गया लेफ्ट ओपन राइट क्लोज्ड इंटरवल -4 and 6। सेकंड है x such that x belong to R -12 लेस देन x लेस देन -100। अब ये दोनों लेस देन है, बोथ द पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये आ गई ओपन इंटरवल -12 and -10। थर्ड पार्ट है x such that x belong to R 0 is less than equal to x less than 7। अब 0 is less than equal to x मीन्स 0 जो है ये इंक्लूडेड है, तो यहां पर क्या आ गया, ये लेफ्ट क्लोज्ड राइट ओपन। फोर्थ है x such that x belong to R 3 is less than equal to x less than equal to 4। both 3 and 4 are included, it means that here is closed interval, तो ये आ गया closed interval 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसने पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, हमने उनकी इंटरवल लिखी। अब उसने इंटरवल हमें दी है और हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। -3 0, तो ये दोनों में ये ओपन इंटरवल दिया है, तो x such that x belong to R -3 less than x less than 0। क्लोज्ड इंटरवल 6 12 x such that x belong to R 6 is less than equal to x less than equal to 12। अब यहां पर क्या है, राइट क्लोज एंड लेफ्ट ओपन, तो x such that x belong to R 6 is less than x less than equal to 12। और जहां पर है राइट ओपन एंड लेफ्ट क्लोज्ड -23 5, तो x such that x belong to R -23 less than equal to x less than 5। Question number 8, the set of right triangles। सेकंड, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पर ये दो सेट हैं, पहला सेट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा सेट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने इनका यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो क्या होगा वो, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, सेट A is equal to 1 3 5, set B is equal to 2 4 6, set C is equal to 0 2 4 6 8। अब हमें ये जो दिया है इसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से देखना है कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो यूनिवर्सल सेट जो है इन तीनों के लिए वही होगा जिसमें से ये तीनों डिराइव किए जाए, यानी कि जिसमें से इन तीनों के सारे एलिमेंट्स हों। तो यहां देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें C में 8 है लेकिन यहां पर नहीं है, इसलिए ये नहीं। दूसरा आ गया 5, ये एम्प्टी सेट है, ये भी नहीं। तीसरे में देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि इनसे ज्यादा है। इनमें जो है ये तो है ही है लेकिन इनसे ज्यादा है, तो देन इट इज ए यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सारे के सारे सेट जो हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं A B और C के, वो सिर्फ थर्ड केस में है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो थर्ड केस होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Some properties of the operation of union। A union B is equal to B union A, commutative law। A union B union C is equal to A union B union C, associative law। A union phi
is equal to A, law of identity element of phi is the identity of U. A union A is equal to A, idempotent law. Union A is equal to union, law of union. इसके बाद है intersection of sets. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. Symbolically we write A intersection B is equal to x such that x belong to A and x belong to B. इसमें क्या है कि जो हमारा शेडेड पोर्शन होगा, यानी कि ऐसा पोर्शन जो दोनों सेट्स में कॉमन है, जैसे ये है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. इसका कुछ ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये ए में भी है, और यहां देखिए ये वाला पोर्शन जो है बी में भी. तो यानी कि जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे वो आएंगे. द शेडेड पोर्शन इंडिकेट्स द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. उसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी कि ऐसे दो सेट्स जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, ये देखिएगा, जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं हो, उन सेट्स को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स. सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन. ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. कम्यूटेटिव लॉ. A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Associative law. Phi intersection A equal to phi, and U intersection A is equal to A. U stands for universal set. A intersection A is equal to A, idempotent law. A intersection B union C is equal to A intersection B, union A intersection C, distributive law. Difference of sets. The difference of sets A and B is the set of elements which belong to A but not to B. Symbolically we write A difference B and read as A minus B. For example, let A is equal to 1 2 3 4 5 6 and B is equal to 2 4 6 8. Then A minus B is equal to all those elements of A which belong to A but not to B. यानी कि जो एलिमेंट्स A के B को बिलोंग नहीं करते हैं वो आ गया A माइनस बी. तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो इनको हमने छोड़ देना है. तो हमने क्या लेना है? 1 3 एंड 5. ये जो ए के एलिमेंट्स हैं ये बी को बिलोंग नहीं करते, बाकी जो हैं ए के सारे बी को बिलोंग करते. तो ये हो गया ए माइनस बी. सिमिलरली अगर हमें बी माइनस ए लेना है तो बी के जो एलिमेंट ए को नहीं बिलोंग करते, तो 2 जो है ये ए को बिलोंग करता है, 4 ए को बिलोंग करता है, 6 ए को बिलोंग करता है, लेकिन 8 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता है. तो इसलिए b माइनस ए हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया. अब वेन डायग्राम में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है. तो ए का यो पोर्शन शेडेड है, ये वाला पोर्शन जो है शेडेड पोर्शन, दिस इज ए माइनस बी. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 पार्ट फर्स्ट. x इक्वल टू 1 3 5
and y is equal to 1 2 3. Find the union of each of the following pairs of sets. तो हमें इनकी यूनियन निकालनी. हमारे पास क्या है, सेट एक्स है 1 3 5 और सेट वाई है 1 2 3. तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, यूनियन में हमें क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखने हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है. तो यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 5. तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास सेट ए जो है और ये सेट बी, सारी यहाँ पर एक्स और वाई हैं, एक्स और वाई. एक्स सेट क्या है 1 3 5 और यहाँ पर है 1 2 3. तो 1 और 3 जो हैं ये कॉमन हैं, तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 2. तो जहाँ से हमें मिल जाएगा सेट एक्स के क्या एलिमेंट हैं 1 3 5, सेट वाई के क्या एलिमेंट हैं 1 2 3. तो एक्स यूनियन वाई जो है, ये जो हम जितना शेड कर रहे हैं पोर्शन, ये सारे का सारा ये शेडेड पोर्शन जो है ये एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई. तो अब पार्ट सेकंड है हमारे पास. सेट ए जो है, सेट ए उसने दिया हमें ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वावल्स. और सेट बी दिया है ए बी और सी. तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, ए बी सी ई आई ओ यू. ये भी ठीक है. अगर कोई ऐसे लिखता है ए ई आई ओ यू और उसके बाद ए फिर रिपीट होता है तो ये एक ही बार आएगा, बी सी लिख देता है, तो तब भी ठीक है. तो अब अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो देख लीजिए इसकी वेन डायग्राम क्या होगी. ये सेट आ गया ई और ये सेट आ गया बी. तो आपने देखना है इनमें पहले कॉमन क्या क्या है. एक ए जो है ये रिपीट हो रहा है तो ए बीच में आ गया, उसके बाद और कोई नहीं है तो यहाँ पर आ गया ई आई ओ यू और यहाँ पर आ गया बी और सी. तो यहाँ से क्लियर है सेट बी के क्या एलिमेंट हैं ए बी सी, सेट ए के क्या एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू. तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन सबको मिला के लिखना है. तो हमारे पास आ गया ए बी सी ई आई ओ यू या ए ई आई ओ यू बी सी. तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये सारे का सारा, ये सारा ए यूनियन बी.
Question number 1, part 3rd. A is equal to x such that x is a natural number and multiple of 3. तो मैंने A को, ये जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इनको दो तरीक़ों से किया. एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही रखा है और दूसरा रोस्टर फॉर्म में किया. अब सेट ए को मैंने यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखा है 3, 6, 9, 12. क्या है सेट ए? सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. x जो है ये नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है. तो यानी कि 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है, तो रोस्टर फॉर्म में वो आएगा सेट ए इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3. 3, 6, 9, 12 नेचुरल नंबर होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए. सेट बी जो है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6, और ये कहता है सेट बी में वो एलिमेंट्स हैं, वो नेचुरल नंबर का सेट है ये जो 6 से कम है. तो वो आगे ये सेट बिल्डर फॉर्म में और ये रोस्टर फॉर्म में. तो सेट बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. अब हमने इन दोनों की यूनियन बनानी है, ए यूनियन बी. तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5. 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो इसलिए हमने इसको एक बार ले लिया. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 एंड सो ऑन मल्टीपल ऑफ 3. अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है नेचुरल नंबर लेस देन 6, और दूसरा क्या है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3. तो इसमें जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे ये हम अलग से लिखेंगे. तो बाकी लिखेंगे हम 1, 2, 4, 5 और ए मल्टीपल ऑफ 3. तो ये ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया और वही क्वेश्चन का ए यूनियन बी ये रोस्टर फॉर्म में हो गया. तो मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से बता दिया. अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा, अगर आप रोस्टर फॉर्म में करते हैं तो आपका ये आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 4. Question number 1, part 4. Set A is equal to x such that x is a natural number and 1 is less than x less than equal to 6. तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा A is equal to 2, 3, 4, 5, 6. x such that x is a natural number and 1 is less than x less than equal to 6. x वो नेचुरल नंबर है such that 1 इज़ लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 6, यानी कि 1 उससे छोटा है और 6 के बराबर या 6 से कम है. तो वो क्या आ गया 2, 3, 4, 5, 6. सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस दैन एक्स लेस दैन 10, यानी कि 6 एक्स से छोटा है और x जो है वो 10 से छोटा है. इसका मतलब वो क्या हो सकता है 7, 8, 9 ये आ गया. तो A यूनियन B रोस्टर फॉर्म में क्या आ गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और A यूनियन B सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आ गई x सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन 10. x सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन 10. यहाँ देखिए कि 1 और 10 के बीच जो नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड x बिलोंग टू n. और इसका फिफ्थ पार्ट जो है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, b इज इक्वल टू 5. तो a यूनियन b इज इक्वल टू 1, 2, 3. सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट हैं और b जो है वो खाली है, उसके बीच कुछ नहीं है. तो क्या आएगा हमारे पास 1, 2, 3 आएगा. तो दिस इज इक्वल टू ए, बिकॉज ये एक हमारे पास जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी सेट्स की
तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी आई थी A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। तो इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद फिर बाकी करेंगे।